Hello class, my name is Nishant Kumar and I am a teacher in Vision to Success. Vision to Success is an institute in Godda, Jharkhand. You could come here physically to get my classes. You can log on to visiontosuccess.godaddysites.com to get more information regarding my classes and my schedule of every classes I conduct here. So today's topic will be actually regarding the syllabus of classes 8th, 9th and 10th and what I am going to teach in 7th class, what I am going to teach in 8th class and 9th class and 10th class. The topic which I am going to discuss today is actually regarding the Java syllabus. What I am going to teach in different classes, how I am going to put up every topic in every classes and so on. Because I am going to teach all the levels of the class 7th, 8th, 9th and 10th. But I have to finish just one syllabus and that is Java. Means I just have to complete one syllabus and that is Java. For Java, I am just taking 4 years so that students may understand what the Java language is. Students have to understand what a language is first before learning a Java language. A child learns English language from their birth. They are taught ABCDs in LKGs and they just continuously, gradually learn little by little every day and they can speak the English language right now. How will they master the Java language? And to master something, it takes time. To master a language, it takes time. We speak English language, we speak Hindi language, but we have no masters in any of those languages. We don't know very much, we get confused, we get fumbled up when we speak English language and we tend to shift to Hindi language just like I'm doing it right now. हम क्या करने लगते हैं जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी कंटिन्यूसली बोलते हैं तो हम फंबल करने लगते हैं और तुरंत हिंदी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं. आखिर ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी, बिकॉज ऑफ द वर्ड स्टॉक. We don't have the masters in English. We have not mastered the language. Like in the same manner, we are going to master Java language in these 4 years. I am going to teach you in 7th, 8th, 9th and 10th. What all things I am going to teach you are very small. The Java syllabus, which is in ICSE, is literally small. I am going to write it down. First, introduction to Java language. Introduction to Java language, that when the Java language was made, who created Java language, what all things or what are the histories about Java language. These all things come under introduction part. After that, we are going to learn something about the features of Java. What are the features we are provided with? What are the features we are provided with? We are going to learn something about object-oriented nature. Object-oriented nature of Java. These things means in detail. We are going to study the features of Java in detail. Because if we study the features of Java in detail, we are going to get as many points possible inside that. After studying object-oriented programming, we are going to study the principles. The principles of this programming. Principles of object-oriented programming is called in short as OOP, or often people call it as OOPS. Okay, so principles of OOPS, we are going to study about it. After that, after studying all these things, we are going to shift to something new. That suppose, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको हिंदी में बताता हूँ शांति से, कि सपोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या बताया जाता है कि आपको कैरेक्टर सेट, मतलब कि LKG UKG क्लास में आपको कैरेक्टर सेट बताया जाता है कि ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या है. ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट के रूप में, मतलब कि दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर वहीं आप हिंदी में पढ़ते तो आपको ओ आ हर्षई दीर्घई पढ़ाया जाता और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पढ़ाया जाता, न कि 1 2 3 4 5 6 पढ़ाया जाता. तो these are the simple steps which are followed in each and every languages, and these steps are actually called as character set in Java. So after that, after studying these things, we are going to study about character set in Java. Character set in Java. अब character set पढ़ने के बाद
अब कैरेक्टर सेट में बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कैरेक्टर सेट जैसे कि अगर पढ़ना शुरू किया हमने तो इसमें सारे कैरेक्टर्स आ गए, चाहे आप ABCD ले लो, स्मॉल ABCD ले लो, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ गई, इसी कैरेक्टर सेट में फॉल कर गई। कैरेक्टर सेट में फॉल करने के बाद अब यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें नहीं है कैरेक्टर सेट में फॉल करने वाली, जावा में और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कैरेक्टर सेट के अंदर। यहीं पे आपको सब चीज़ पता चल जाएगा अबाउट क्या, एनकोडिंग प्रिंसिपल। एनकोडिंग, कौन सा एनकोडिंग के बारे में, जैसे एग्जांपल में ASCII, ISCII and about Unicode. These all concepts fall under the character set of Java language. ASCII, ISCII, Unicode, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोड। खैर ये सब टॉपिक को हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस चीज़ को समझना है कि दीज कैरेक्टर सेट ऑल्सो मेक्स और मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ जावा लैंग्वेज। ये जावा लैंग्वेज का बिगिनिंग को मार्क करता है। कैरेक्टर सेट में लगभग सारी चीजें फॉल कर जाती हैं। कैरेक्टर सेट में आपके टोकन्स भी फॉल कर जाते हैं, क्योंकि दीज आर द कैरेक्टर सेट विच आर टू बी यूज्ड इनसाइड जावा लैंग्वेज। तो टोकन्स वगैरह सब कैरेक्टर सेट के अंदर फॉल कर गए आपके। अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सिलेबस को तोड़ना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम सिलेबस को तोड़ना शुरू करेंगे और हम लोग स्पीड में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यस, मैं इसको जानबूझ के सिलेबस को आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि आपको एक्चुअली में चीजें क्या क्या पढ़नी है जावा लैंग्वेज में, जिससे कि आपको जावा लैंग्वेज खुद ब खुद मास्टर अपने आप हो जाए। इस चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। जावा को आप कैरेक्टर सेट वगैरह को खत्म करते हो। कैरेक्टर सेट को खत्म करने के बाद दी मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि आपको डिस्कस करना पड़ता है वो क्या है आपके, जब कैरेक्टर सेट आपको बता दिया गया, आपको कैरेक्टर सेट बता दिया गया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको कि आप यूज करोगे जावा लैंग्वेज, उसमें कि ASCII, ISCII, यूनिकोड वगैरह सब चीज के बारे में आपको बता दिया गया, एस्केप सीक्वेंस के बारे में आपको बता दिया गया, हर चीज के बारे में आपको बता दिया गया। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे कि आपको जान पहचान सको कि आप जो कैरेक्टर सेट पढ़े हो वो एक्चुअली कैरेक्टर सेट हैं क्या, कि डेटा यहाँ पे डेटा कौन कौन से हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यस, डेटा के बारे में क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। डेटा टाइप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यू कैन डिवाइड डेटा टाइप्स इन 2 पार्ट्स। एक हो जाता है तुम्हारा प्रिमिटिव, दूसरा हो जाता है तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तुम्हारे हो जाते हैं 8 टाइप्स के। कौन सा? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार एंड लास्ट में बूलियन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हो जाते हैं तुम्हारे प्रिमिटिव टाइप के। नॉन प्रिमिटिव टाइप जो कि एक्चुअली में एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो डेटा टाइप, जिसको कि आप पढ़ेंगे इसी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 9th में ही, वो है टॉपिक आपका स्ट्रिंग का। वो टॉपिक है आपका स्ट्रिंग का। यस, अब आपको जरूर आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे टॉपिक, अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिटेल में फिलहाल इस क्लास में, ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जो पूरा का पूरा 9th का सिलेबस है। अब ये 9th के सिलेबस में और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। स्पेशली कौन सा टॉपिक, जैसे इनपुट एंड आउटपुट इन जावा लैंग्वेज, ये एक अलग से टॉपिक होगा जिसको कि हम लोग टचअप करेंगे। ठीक है, टोकन्स फिर अगेन बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट सिलेबस को ले लेता है। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स दे आर स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर अटैच्ड टू द कंपाइलर, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल ले लीजिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब, अगर ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। तो उसी तरह से ये जो प्ले, ईट, ये सारे वर्ड्स क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। आई एम गोइंग टू प्ले फूड हम नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग टू ईट फूड बोलेंगे। आई एम गोइंग टू ईट फूड बोले, आई एम गोइंग टू प्ले फूड नहीं बोलेंगे। उसी तरह से यहां तो जो आते हैं जब कीवर्ड में, तो कीवर्ड भी वही चीज है। कीवर्ड, देयर आर अबाउट 52 कीवर्ड्स इन जावा लैंग्वेज। अब वो जो जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब वो कीवर्ड्स का एक इनका स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि कंपाइलर में अटैच्ड है पहले से, कि अगर इंट लिखा जाएगा तो इंट का मतलब यही होगा कि 4 बाइट का जगह लेना है उसको मेमोरी में।
उसी तरह से और भी अलग 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 आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग सेट है जो कि कंपाइलर जानता है उसको। अगर जैसे आप लिखेंगे कंपाइलर समझ जाएगा, अच्छा ये आ गया यहाँ पे, इसका ये मीनिंग है। आगे बढ़ने के बाद कौन सा अपना आइडेंटिफायर। अब देखिए फिर यहाँ पे हमको तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। क्यों? अब कीवर्ड है तो कीवर्ड तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब की तरह हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको इस बात को दिमाग में डालकर चलना होगा कि जावा इज ऑल्सो ए लैंग्वेज एंड इट इज द सेम लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। इस बात को आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। कीवर्ड को कंपेयर किया मैंने किससे? इंग्लिश के वर्ब से। आइडेंटिफायर उसको हम किससे कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? नाउन से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? नाउन से। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसी तरह आइडेंटिफायर इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट और ए क्लास और ए फंक्शन। इस बात को दिमाग में रख लेना है क्या कि आइडेंटिफायर भी क्या है? आपका नाम ही है। आइडेंटिफायर भी आपका नाम ही है। यस इट इज नाउ इट। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है? नाउन है आपके जावा लैंग्वेज का। इट इज लाइक अ नाउन ऑफ जावा लैंग्वेज। आइडेंटिफायर का हिंदी क्या हो गया? परिचायक। आइडेंटिटी मतलब परिचय, आइडेंटिफायर मतलब परिचायक। आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। यहां पे लिटरल्स आ गया तुम्हारा। लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स होता है तुम्हारा ना वैल्यू। अब वैल्यू, लिटरल्स क्या है? वैल्यू है। कहीं भी आप जब वैल्यू को देखते हो 2 3 4 5 6 7 जो भी वैल्यू, जब वैल्यू किसका होगा? वैल्यू होता किसका है? वेरिएबल का वैल्यू होता है। अरे तुम लोग बहुत साल से पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, तुम लिखते हो P इज इक्वल टू 10,000। अब P इज इक्वल टू 10,000 लिखते हो, ये तुम बचपन से पढ़ता रहे। P क्या है? वेरिएबल है। 10,000 कांस्टेंट, उसी को तो हम कहते हैं लिटरल्स। अब इसको लिटरल्स बोलो चाहे उसको कांस्टेंट बोलो, लेकिन बात उसका वही सेम चीज है। तो लिटरल्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो लिटरल्स तुम्हारे कई तरीके के हो जाते हैं जावा लैंग्वेज में। जावा लैंग्वेज बहुत सारे लिटरल्स को फीचर करता है। ठीक है, तो लिटरल्स अगेन हम इसको भी तोड़ देते हैं। लिटरल्स को तुम डिवाइड कर दो क्या? सबसे पहला हो गया तुम्हारा इंटीजर लिटरल, क्योंकि नंबर वगैरह है सारे के सारे क्या हो गए? इंटीजर लिटरल हो गए। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होता है? तुम्हारा जो भी तुम्हारा पॉइंट वगैरह से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या हुआ? तो जो भी चीजें जो कि पॉइंट रखते हैं, जैसे कि 24.75, ये सब एग्जांपल कहां चले गए? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में चले गए। अब उसके बाद और भी कौन से लिटरल है? तो भैया कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, प्रॉपर कैरेक्टर सेट वगैरह को पढ़ेंगे, जब मैंने क्लास में पढ़ाऊंगा इन्हें कैरेक्टर सेट वगैरह, तो आप जाके डिटेल में समझेंगे कैरेक्टर सेट किसको कहते हैं और कैरेक्टर लिटरल किसको कहते हैं। थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, कैरेक्टर लिटरल क्या होता है? एनीथिंग केप्ट इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड कैरेक्टर लिटरल। अब कैरेक्टर लिटरल में क्या होता है? एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं होगा भैया। एनी सिंगल कैरेक्टर केप्ट इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड कैरेक्टर लिटरल। काम खत्म। आगे बढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल, अब यहां पे एनीथिंग शब्द बहुत बढ़िया होगा। एनीथिंग केप्ट इनसाइड डबल कोटेशन मार्क इज स्ट्रिंग लिटरल। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम इंटीजर लिटरल को देखें, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को देखें, कैरेक्टर लिटरल को देखें, स्ट्रिंग लिटरल को देखें। एक और लिटरल बच रहा है भैया, उसको हम कहते हैं क्या? बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल। अब बूलियन लिटरल क्या क्या हो गया? दो ही हो गया, ट्रू और फॉल्स। बस यही दो तुम्हारा क्या हो गया? बूलियन लिटरल। अभी देखिए ध्यान से कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? सिलेबस को बाइफरकेट कर रहे हैं कि आपको अब पता चले कि कौन कौन सा कहाँ टॉपिक्स है, कैसे कैसे डिस्कशन करेंगे। ज्यादा डिटेल में हम घुस जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। तो फिलहाल खैर इस बात को देखिए, कैरेक्टर लिटरल्स क्या हो गया? 5 टाइप में आपको डिवाइड मैंने कर दिया, आपको दिखा दिया, ये लिटरल हो गया। अब सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ इस चीज को, क्यों? क्योंकि अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में क्या हुआ? ऑपरेटर को फिर हम तोड़ देंगे। ऑपरेटर फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। ऑपरेटर को जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसको हम तोड़ते हैं यूनरी, उसको फिर तोड़ते हैं हम बाइनरी, और लास्ट में रखते हैं टर्नरी। डिटेल में डिस्कशन क्लास में ही करेंगे हम, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। यूनरी उनका मतलब होता है 1, बाइनरी बाई का मतलब होता है 2, टर्नरी टर का मतलब खैर छोड़िए, टटराना नहीं है, टर्नरी का मतलब होता है 2 से ज्यादा। ठीक है, यहां पे एक ऑपरेंड का इस्तेमाल होगा, यहां पे 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल होगा, यहां पे 2 से ज्यादा ऑपरेंड का इस्तेमाल होगा। लेकिन फिलहाल यूनरी ऑपरेटर का बस एग्जांपल्स क्यों देंगे, क्लास आई है उसके बाद बताएंगे। खैर बाइनरी ऑपरेटर, अब बाइनरी ऑपरेटर को क्या करते हैं हम लोग? फिर से डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे टाइप्स में। इसको सबसे पहले हम मार्क करते हैं किसमें? अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारा? कंडीशनल ऑपरेटर। फिर क्या आ जाता है तुम्हारा? लॉजिकल ऑपरेटर। फिर क्या आ जाता है तुम्हारा? बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इट इज ऑल्सो लाइक ए बिटवाइज, वो एक बिटवाइज का ही बाइफर्केशन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके बहुत सारे हो जाते हैं, अब इसको डिटेल में हम क्लास में ही करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर आ जाते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इन जावा लैंग्वेज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जिसको कि आपको मिस नहीं करना है। इन सब सिलेबस को लेकर ही आगे बढ़ना है, तभी आपका दिमाग प्रॉपरली ओपन होगा। आपको बार बार इस वीडियो को प्लेबैक करके चेक करते रहना है कि आखिर सिलेबस में हम लोग एक्चुअली में मिस कहां कर रहे हैं, लैग कहां पे कर रहे हैं, किस चीज को हम नहीं समझे हुए, किस चीज को मेरा समझना अभी बाकी है, बहुत जरूरी है समझना। इसलिए इस चीज को आपको बार बार रिकॉल करते रहना, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को मैं डाल दूंगा आपके हर जगह पे, जहां पे भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेटर नाम से क्लियर हो रहा है, सेपरेटर। देखो इसको भी मैं फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में कंपेयर कर सकता हूं, किससे पता है, किससे, पंक्चुएटर्स से। आप एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े होंगे, एक सिलेबस पढ़े होंगे, एक चैप्टर पढ़े होंगे, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे क्या पता चलता है कि कहां पे सेंटेंस एंड कर रहा है, कहां पे सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रहा है। ये सारी चीजें कहां से पता चलती है जावा लैंग्वेज में, बाय यूज ऑफ सेपरेटर्स। आप सेपरेटर्स यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि जावा स्टेटमेंट कहां एंड कर रहा है, कहां स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहां पे टॉपिक क्या आ गया, स्टेटमेंट। का नाम है स्टेटमेंट्स इन जावा। तो क्या नाम है, स्टेटमेंट्स इन जावा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट्स। क्योंकि अगर स्टेटमेंट ही बनाना नहीं सीखोगे, तुम ही सोचो कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, इंग्लिश लैंग्वेज में तुम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह सब चीज पढ़ ली, अब तुमको उसके बाद सेंटेंस ही बनाने नहीं आता है। कोई फायदा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के? कोई फायदा नहीं। यहां पे इस चीज को दिमाग में रखना है क्या, कि अगर आपने टोकन्स के बारे में पढ़ा है तो भैया उसका यूज भी तो करो। अगर हमको बाइक के बारे में हम आपको बता दिए कि इसको ऐसे स्टार्ट किया जाता है, इसमें ये गियर होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है काम, और तुम जाके बाइकें नहीं चला रहे हो, फायदा क्या नॉलेज रख के? यही चीज यहां पे भी लागू होती है। आपको इस बात को दिमाग में डालकर रखना है कि अगर आपको सब चीज पढ़ा दिया गया, यस, स्टार्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम इट, स्टार्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम इट। तो स्टेटमेंट्स इन जावा जब आते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं प्रॉपरली। सबसे पहला तुम्हारा क्या हो जाता है कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ये मेरा बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, क्या कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच एंड्स विद अ सेमीकोलन, उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सब मेरा बताया हुआ टेक्निक है। क्या कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट दैट एंड्स इन अ सेमीकोलन इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। एनी स्टेटमेंट विच डू नॉट टेक अप अ ब्लॉक इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ये ब्लॉक वगैरह जब हम लोग यूज नहीं करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहते हैं, विच इज नॉट फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर दैट। अगेन सिंगल लाइन स्टेटमेंट के बाद हम लोग आते हैं कहां पे, मल्टी लाइन स्टेटमेंट। अगेन मल्टी लाइन स्टेटमेंट में क्या हो जाता है तुम्हारा कि इसमें ये स्टेटमेंट कभी भी सेमीकोलन से एंड नहीं करता है। इट ऑलवेज यूजेस ब्लॉक्ड लाइन, ऑलवेज कम विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पेयर्ड विद देम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट often uses blocks in their statement। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट में आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल लाइन स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी दिमाग में रखना है आपको। सिंगल लाइन स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट तुम्हारा हो सकता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। और कौन सा हो सकता है, डिक्लेरेशन लाइन हो सकता है तुम्हारा सिंगल लाइन स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, प्रिंटिंग लाइन तुम्हारा हो सकता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। बिकॉज वाई, बिकॉज दे ऑल एंड विथ अ सेमीकोलन। इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, यस आई कैन आई कैन कॉल देम ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट जब फॉलो करते हैं तो लगभग जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें डिटेल में पढ़ना है उसको, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो गया तुम्हारा, कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर क्या हो गया तुम्हारा, लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर लगभग, मैं ज्यादातर लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा चीजों को यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन लगभग तो सब वही है ना, क्लास, फंक्शन, ये सारे के सारे क्या हो गए तुम्हारे, मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो गए। व्हाई, बिकॉज दे ऑलवेज यूजेस अ ब्लॉक इन देयर स्टेटमेंट, इन देयर एप्लीकेशन। जब भी आप यूज करते हो उनको तो हमेशा वो ब्लॉक्स के साथ यूज होते हैं। इस बात को आपको दिमाग में एकदम डाल के रख लेना है, गांठ बांध के रख लेना है। फिलहाल आपको स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन लाइन, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे, क्लास में ही बताएंगे। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड प्रिंटिंग लाइन हो गया। तुम्हारे मल्टी लाइन स्टेटमेंट कौन सा हो गया, कंडीशनल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया और लूपिंग स्टेटमेंट हो गया। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इन चीजों को समझ लो। कंडीशनल स्टेटमेंट तुम्हारे कौन कौन से हो गए, तो तुम्हारे हो गए इफ एल्स,
ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा इफ, एल्स, इफ लैडर, और उसके बाद तुम्हारा हो गया क्या, स्विच केस। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। अगेन जब लूपिंग स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आओगे तो लूपिंग स्टेटमेंट को क्या तुम डिवाइड करते हो, एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, ये दो भाग में तुम डिवाइड करते हो। फिर तुम एंट्री कंट्रोल लूप को पढ़ते हो, एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल को तुम फिर दो भाग में डिवाइड करते हो, फॉर, वाइल, और एग्जिट कंट्रोल तुम डिफाइन करते हो किससे, डू वाइल से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, तुम्हारे स्टेटमेंट्स हो गए जिसको कि आप डिटेल में पढ़ते हो प्रॉपरली।